श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 63 of the Ayodhya Kandam, which has 53 verses. Waking from sleep after a while and recalling his sinful deeds which spelt death to him, Dasharatha proceeds to tell Kausalya how, while he was a prince regent of Ayodhya, he went on a hunt in the forest one day and heard during the last watch of the night the sound of a hermit boy filling his pitcher with water by submerging it in the Saryu river. Mistaking that gurgling sound for the trumpeting of an elephant, Dasharatha hits the boy with an arrow which digs deep into the body, mortally wounding him. On approaching his quarry, he discovers his fatal blunder and tendered his heartful apology to the hermit boy, who asks him to extract the arrow from his body and report the matter to his aged parents. The boy dies immediately as the arrow was taken out of the body. आज हम त्रिशिष्टितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 53 श्लोक हैं। राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वार मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहत चेतनः अथ राजा दशरथः सचिंताम् अभ्यपद्यत। राजा दशरथ के 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। Having woken from sleep after an hour or so, the said King Dasharatha, whose mind was obscured with grief, now fell a prey to anxiety. राम लक्ष्मणयोश्चैव विवासाद् वासवोपमम् आपेदे उपसर्गः तं तमः सूर्यमिवासुरम्। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार घर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। Consequent on the banishment of Sri Rama and Lakshmana, grief had seized the king, who vied in might and splendor with Indra, the ruler of gods. Even as obscurity, which is attributed to the demon Rahu, also recognized as a planet, seizes the sun at the time of a solar eclipse. सभार्ये हि गते रामे कौसल्यां कोसलेश्वरः विवक्षुर सीता पांगीं स्मृत्वा दुष्कृतम् आत्मनः। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल्य नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्र वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। Reconciling his misdeeds as responsible for his present misfortune in the shape of separation from his sons and daughter-in-law, when Sri Rama had actually departed for the forest with his wife and Lakshmana, Dasharatha, the king of Koshala, felt inclined to tell Kaushalya, the corners of whose eyes were noted for their dark color, all about it. स राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रव्राजिते वनम् अर्धरात्रे दशरथः सो अस्मरद दुष्कृतं कृतम्। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। On the 6th night after Sri Rama had been sent into exile, the celebrated King Dasharatha remembered at midnight the misdeed perpetrated by him. स राजा पुत्र शोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतम् आत्मनः कौसल्यां पुत्र शोकार्ताम् इदं वचनम् अब्रवीत्। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया।
Recollecting his misdeed, the aforesaid monarch, who was stricken with grief caused by separation from his son, spoke as follows to Kausalya, who was equally stricken with grief born of separation from her son. यदाचरति कल्याणी शुभं वा यदि वा शुभं तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मधमात्मनः। कल्याणी मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, भद्रे अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। A doer surely reaps, O blessed lady, the fruit of his own deeds, corresponding to the nature, good or evil, of that which he does, O gracious one. गुरु लाघवम् आर्तानाम् आरम्भे कर्मणां फलं दोषं वा यो न जानाति स बाल इति उच्यते। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। He who does not reckon while undertaking actions the relative importance of their fruits as well as the advantages or disadvantages accruing from them is surely dubbed as a fool. आम्रवनं चित्वा फलाशांश्च निषिञ्चति पुष्पं दृष्ट्वा फले गृध्नुः स चोचति फलागमे। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन ये अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहां पलाश के पौधे लगाता और सींचता है, वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता है। Anyone who, cutting down a whole mango grove because of its unattractive and tiny blossoms, nourishes a cluster of palasha trees, expecting large and luscious fruits on seeing their charming and big flowers, repents at the time of their fruition. अविज्ञाय फलं यो हि कर्म तु एवानुधावति स शोचेत फलवेलायां यथा किंशुकसेचकः। जो क्रियामान कर्म के फल का ज्ञान या विचार ना करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसे कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। Indeed, like the man who nourishes a kimsuka tree, he who embarks on action alone, not minding the consequences, is sure to repent when the action bears fruit. सो अहम् आम्रवनं चित्वा फलाशांश्च न्यषेचयम् रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चात् शोचामि दुर्मतिः। मैंने भी आम का वन काटकर पलाश को ही सींचा है, इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। Cutting down a mango grove, I have accordingly watered the palasha trees and sending away Rama to the forest at a time when the said mango grove was going to bear fruit, I repent, a fool that I am. लब्ध शब्देन कौशल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारः शब्दवेदीति मया पापमिदं कृतम्। कौशल्य पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुधर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था जिसे अभी बताऊंगा। The sin which I am going to describe now was perpetrated by me, O Kausalya, while I was yet a prince wielding a bow and arrow and had won the title of a prince, expert in hitting an invisible mark with the help of the sound made by it. तदितं मेनु संप्राप्तं देवी दुःखं स्वयं कृतं सम्मोहात् इह बालेन यथा स्याद् भक्षितं विषम्। देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे ही वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या ज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है।
This disaster, which was earned by myself, has been reaped by me, O godly lady, in the same way as poison may be swallowed by a child through excessive folly. यथान्यः पुरुषः कश्चित् पलाशैर्मोहितो भवेत् एवं मया अपि अविज्ञातं शब्दवेद्यम् इदं फलम्। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्द वेदी बान विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। इसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। Even as a common man would be deluded by the charming red blossoms of a palasha tree and misled to think that it would yield equally large and delicious fruit, so it was never suspected by me that the dexterity acquired by me in hitting an invisible mark with the help of its sound would yield such a disastrous result. देव्यनूढा त्वम् अभवो युवराजो भवाम्यहम् ततः प्रावृन्नुप्राप्ता मम काम विवर्धिनी। देवी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। You were not married with me till then, O pious lady, and I was only a prince regent at that time. Then set in the monsoon, which keenly enhanced my passion for hunting. अपास्य हि रसान् भौमां स्तप्त्वा च जगदंशुभिः परेता चरितां भीमां रविराचरते दिशम्। सूर्य देव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। Sucking the moisture of the earth and scorching the world with its rays, the sun had begun to course through the southern quarter, haunted by spirits and therefore exciting fear. उष्णमन्तर्दधे सद्यः स्निग्धा ददृशिरे गणाः ततो जगृशिरे सर्वे बेकसारंग बर्हिणः। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेंढकों को, चातक को और मयूरों में हर्ष छा गया। Clouds laden with moisture appeared in the sky, and the heat vanished all of a sudden. Frogs, the kataka birds, and the peacocks all rejoiced in the consequence. क्लिन्न पक्षोत्तराः स्नाताः कृच्छ्राद इव पतत्रिणः वृष्टिवातावधूताग्रान् पादपान् अभिपेदिरे। पक्षियों की पांखें ऊपर से भीग गई थी, वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्ष तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। Birds which had the upper part of their wings drenched and which therefore looked as though bathed could reach with difficulty the trees on which they had nestled and whose ends were shaken by rain and the winds. पतितेन अम्बसा अच्छन्नः पतमानेन चा सकृत् आबभौ मत्तसारंगः तोयराशि रिवाचलः। गिरे हुए, बारंबार गिरते हुए जल से आकर्षित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। Covered by the rainwater already fallen and still repeatedly falling on it, the mountain with elephants in rut looked like a waveless ocean and a drenched mountain. पाण्डुरारुण वर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि सुस्रुवुर् गिरिधातुभ्यः स भस्मानि भुजंगवत्। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातु के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। Cascades carrying transparent waters ran in a serpentine course, assuming a white, ruddy, and ashy color on the way due to contact with the mountain minerals of those colors. तस्मिन् अतिसुखे काले धनुष्मा निशुमान् रति व्यायाम कृत संकल्पः सरयू मन्वगाम नदी। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में
मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। Having made up my mind to take some exercise by way of hunting, and with my senses uncontrolled, I drove at the most agreeable speed in a chariot to the river Saryu, equipped with a bow and arrows. निपाने महिषं रात्रौ गजं वाभ्यागतं मृगम् अन्यत् वा स्वापदं किंचित जिघांसुः अजितेन्द्रियः। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। And wishing to hunt at night a wild buffalo, an elephant, or any other beast of prey or deer, accidentally arrived at some ford in the river. अथान्धकारे त्वस्रौषं जले कुम्भस्य पूर्यतः अचक्षुर्विषये घोषं वारणस्येव नर्दतः। उस समय वहां सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्दों के समान जान पड़ी। Presently, in the darkness, I, for my part, heard the sound of a pitcher being filled in with water of the river, resembling the sound of a trumpeting elephant at a place which was not before my eyes. ततो अहं शरम् उद्धृत्य दीप्तमाशी विशोपमं शब्दं प्रति गजप्रेप्सुरभिलक्ष्य माम् आपातयम्। तब मैंने ये समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तर्कस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। Taking out from my quiver an effulgent arrow resembling a snake in its deadly effect, I then discharged it in the direction of the sound in the hope of hitting the mark, as I wished to bag the elephant after killing it. अमुञ्चं निशितं बाण महामाशी विशोपमं तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीत् वनौकसः। हा हेति पततः तोये बाणात् व्यथित मर्मणः तस्मिन् निपतिते भूमौ वागभूत् तत्र मानुषी। वह उषा काल की वेला थी। विषैले सर्प के सुदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धाराशायी हो जाने पर वहां ये मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगी। In the quarter where I hurled my sharp arrow, resembling a snake in its deadly effect, there emerged in the dawn the clear wail of a dweller in the forest, dropping down in the water, his vital part tormented with pain caused by the arrow. On his having dropped down to the ground, issued forth on that very spot a human voice saying, कथम् अस्मद्विधे शस्त्रं निपते च तपस्विनी प्रविवितां नदीं रात्र उदाहरो अहमागतः। आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रभाव कैसे संभव हुआ। मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। How could a weapon descend on an ascetic like myself, who can have no enemies? I came at the close of night to this exceedingly lonely river bank with the intention of drawing water. इषुना अभिहतः केन कस्य वापकृतं मया ऋषेर्हि न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः। By whom have I been hit with an arrow, or to whom could offense have been given by me, a seer who has foresown every form of violence and who was living in the forest on the produce of the forest? कथं तु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिन वाससः। How can the killing by means of a weapon of an ascetic like me, wearing a mass of matted hair on his head and clad in the bark of trees and deerskin, be enjoined by the scriptures?
को वधेन ममार्ति स्यात् किं वा अपकृतं मया एवं निष्फलमारब्धं केवलान् अर्थसंहितम्। Who can have any interest in killing me? And what offense has been given by me to the man who has hit me with an arrow? In this way, a futile act has been done by him, and an act which will be attended with evil consequences alone. किसने मुझे बाण मारा? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका का चलाता था। मुझे जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वलकाल और मृग चरम पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसी ने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को भी कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। न क्वचित् साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगं नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः मातरं पितरं चो भावानुशोचामि मद्वदे तद् एतन्मिथुनं वृद्धं चिरकालभृतं मया मयि पञ्चात्वमापन्ने कां वृत्तिं वर्तयिष्यति वृद्धौ च माता पिता रावहं चैकेशुना हतः। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई इसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों को बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के ना रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला। Nowhere will anyone admire him any more than one would admire a man seeking the bed of his preceptor's wife. I do not grieve for this loss of my life so much as for the fate of my father and mother, both on my expiry. By what means of subsistence will this aged couple, maintained for long by me, support themselves when I have met my end? My aged parents as well as myself stand killed with a single arrow. By what ignorant fool of an uncontrolled mind have we all been done to death? केन स्म निहताः सर्वे सुबालेनाकृतात्मना तां गिरं करुणं श्रुत्वा मम धर्मानुकांक्षिणः। ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ ये अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। The bow with an arrow which I held in my hands at the moment dropped from my hands to the ground, distressed as I was from hearing that plaintive cry, and sought only to do what was right. Hearing the piteous lament of the seer who was wailing during the close of night, I lost my consciousness again and again, utterly confounded as I was due to the outburst of grief. कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्य अपतद् भुवि तस्याहं करुणां श्रुत्वा ऋषेर्विलपतो निशि। रात में विलाप करते हुए ऋषि का यह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। संभ्रान्तः शोकवेगेन वृषामासं विचेतनः तं देशमहम् आगम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मनाः अपश्य मिषुना तीरे सरैवास्तापसं हतम् अवकीर्ण जटाभारं प्रविद्ध कलशोदकम् पांसु शोणी तद्दिग्धांगं शयानं शल्यवेदितं स माम् उद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तम् अस्वस्थचेतनम्। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया।
सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी वान से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वे बांध से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हैं। वे कठोर वाणी में यूं बोले, Reaching the place where he lay, distressed in mind and extremely sad at heart as I was, I beheld the ascetic lying on the bank of the Saryu, struck with an arrow and pierced with its point, the mass of matted hair on his head put out of order, the water of his pitcher run out, and his limbs besmeared with dust and blood. Staring at me, who stood alarmed and sick in mind, with his bloodshot eyes, as if going to consume me with his glory of austerities, he addressed the following harsh words to me. इत्युवाच वचः क्रूरं दिग्दशन् इव तेजसा किं तवापकृतं राजन् वने निवसता मया। राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा। मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। What wrong was done by me to you, O king, living as I did in the forest, that while intending to take water for my parents, I was hit by you? जिहीर्षुरम्भो गुर्वर्थं यदहं ताडितस्त्वया एकेन खलु बाणेन मर्मन् अभिहते मयि। तुमने एक ही बाण से मेरा मन विदीन करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। On my being hit in a vital part with a single arrow, my blind and aged mother and father both have been virtually killed. द्वावन्दौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे तौ नूनं दुर्बलावन्धौ मत्प्रतीक्षौ पिपासितौ। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं, निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोहते रहेंगे। Feeble, blind, and thirsty, they must be anxiously waiting for me and will be cherishing since long the hope of getting water placed in me and enduring their painful thirst. चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां सन्धारयिष्यतः न नूनं तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा। अवश्य ही मेरे तपस्या अथवा शास्त्रा ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि पिताजी को ये नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। Surely ascesis or learning has not yet borne fruit in my case or in the case of my father, for my father does not know anything about myself, having fallen down mortally wounded and lying on the ground. पिता यन्मां न जानीते शयानं पतितं भुवि जानन् अपि च किं कुर्यात् अशक्तश्च परिक्रमः। यदि जान भी ले तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ है और चल फिर भी नहीं सकते। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। Even if he knew, what could he do? Feeble and unable as he is to move, and in this way is incapable of protecting me, as any tree is incapable of protecting a neighboring tree which is going to be rent asunder. विद्यमानम् इवा शक्तः त्रातुमन्यो नगो नगम् पितुः त्वमेव मे गत्वा शीघ्रम् आचक्ष्व राघव। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को ये समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वह क्रोध में भरकर तुमको भी भस्म नहीं करेंगे। Seeking the presence of my father, O son of Raghuvansha, speak you alone to him speedily about me. न त्वाम् अनुदहेत् क्रुद्धो वनम् अग्निरिवैदितः इयम् एकपदी राजन् यतो मे पितुराश्रमः। राजन, ये पगडंडी उधर हो गई है जहां मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो,
जिससे वह कुपित होकर तुम्हें शाप ना दे। If you take courage in both hands and confess your guilt before him, I am sure he will not burn you in his wrath, as a swollen fire would consume a forest. Here is the track by which my father's hermitage can be reached. तं प्रसादय गत्वा त्वं न त्वा संकुपितः शपेत् विशल्यं कुरु मां राजन् मर्म मे निशितः शरः। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुका में ऊंचे तट को छिन छिन कर देता है। रुणद्धि मृदु सोत्सेदं तीरम् अम्बुरयो यथा स शल्यः क्लिश्यते प्राणैः विशल्यो विनशिष्यति इति माम् अविशचिन्ता तस्य शाल्य अपकर्षणे दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूं तो इन्हें क्लेश होता है और निकाल देता हूं तो ये अभी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाणों को निकालने के विषय में मुझे दीन दुखी और शोक कुल दशरथ की इस चिंता को उसी समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। Approaching him, seek his forgiveness, lest he should get engaged and excrete you. Render me free from pain by extracting the shaft from my body, O king, since your sharp-pointed arrow torments my vital part in the same way as a river current corrodes the high sandy bank. While I was going to extract the arrow from his body, the following thought entered my mind. With the arrows still rankling in his body, the hermit boy will continue to suffer even though he will survive, while he will surely expire the moment the shaft is removed from his body. That sage son of a hermit immediately perceived my anxiety, distressed, miserable, and stricken with grief as I was. लक्षयामास च ऋषिः चिन्तां मुनिसुतः तदा ताभ्यमानं स मां कृच्छ्राद् उवाच परमार्थवित् सीदमानो विवृत्ताङ्घो अचेष्टमानो गतः क्षयं संस्तभ्य शोकं धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूं, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूं। अब मेरी बात सुनो। The hermit boy, who knew the essence of the scripture, spoke with difficulty as follows to me, who was feeling perplexed in mind. Though getting faint and motionless with my eyes turned round, since I have approached my end, I am trying to compose my mind, restraining my grief by recourse to firmness. ब्रह्महत्या कृतं तापं हृदयात् अपि नीयताम् न द्विजातिरहं राजन् मा भूत्ते मनसो व्यथा। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। Let agony caused by the thought of your having killed a Brahmana be driven away from your heart. I am not a Brahmana, O king. Hence, let there be no anguish in your mind on that score. शूद्रयाम् अस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप इतीव वदतः कृच्छ्राद् बाणापि हतमर्मणः विगूर्णतो केष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्य त्वाथाभ्याम् अनस्य तं बाणमहम् उद्धरम्। नर श्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वह पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे।
इस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। I was procreated by a Vaishya through a Shudra woman, O ruler of the foremost of men. While he was speaking as aforesaid with difficulty, his vital part having been smitten with an arrow, and was now rolling on the ground, now tossing about, now quivering, and now fainting, I took out that arrow from his body. Looking dismayed due to anxiety on the score of his parents at me, the boy, whose only wealth was his asceticism, gave up the ghost. तस्य स्वाताम्यमानस्य तं बाणम् अहमुद्धरं सा माम् उद्वीक्ष्य संत्रस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः जलार्द्रगात्रं तु विलप्य कृच्छ्रं मर्मव्रणं सन्ततम् उच्छ्वसन्तं ततः सरस्व्यां तमहं शयानं समीक्ष्य भद्रे सुभृशं विषण्णः। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों को त्याग किया था। कल्याणी कौशल्य उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। I felt extremely sad, O blessed lady, to behold him sighing again and again after speaking out his mind with difficulty, his vital part having been injured and then lying dead on the bank of the Saryu, drenched all over his body with water. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 63तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 63 of the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulям Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।